बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज जुलाई 10 हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके एक्टिव पैसिव जो है वो करने हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस ऑफ आवर सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जस्ट मैंने आपके जो एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए I have written a sentence of present indefinite tense. I offer prayer daily. So, first of all, uh, we have to configure what are the parts of this sentence in parts of speech. Sorry, in parts of speech as well as the parts of a sentence, English sentence. So, इसको English sentence के हवाले से समझते हैं। English sentence जो है वो किन किन चीज़ों पर, कौन से पार्ट्स पर इंक्लूड मुश्तमिल होता है, इंक्लूड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई है, देन ऑफर एंड प्रेयर। सो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, सो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड द लास्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। Now we are going to change this sentence into passive voice because this is an active voice sentence and you are going to have it changed into passive voice sentence. कैसे change करते हैं? So the steps are technical and very simple. अगर आप मेरे साथ इसको फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये तरीक़ाकार समझ आ जाएगा। So an English sentence consists of subject, verb and object. When it is changed into passive voice, जब इसको हम passive voice में change करते हैं, the sentence change its pattern, means the object comes at the subject place, the subject comes at object place. Okay, so हम इसको लिख लेते हैं। What is the object? That is prayer. So write prayer here. Is that simple? Now what is the subject? That is I. It is at object place, क्योंकि I जो है that was subject, now it is at the object place. तो जब हम किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज करते हैं, we have to change it into objective form of pronoun. What is objective form of pronoun I? That is me. Simple. Prayer comes here at the subject. I comes here and changes it to me. Now, objective form, obviously, I place its objective form me here. Now, the part that remains is verb. Verb क्या है? Offer. When it comes at this place, offer changes. Excuse me. Changes into third form of verb. Third form of offer is offered. Okay, this is a simple sentence and the parts of this sentence are replaced. अभी हमने इसकी सिर्फ जगह तब्दील की है. This is not a meaningful passive voice sentence. We have to
include some other things as well to understand the meaning of this sentence. हमें इसको समझने के लिए कुछ ना कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ती हैं. Obviously we have to put a word by here. हमने अपनी तरफ से by ऐड कर दिया. ठीक है, ये by always included preceding an objective pronoun in passive voice. जब भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा उससे पहले by का वर्ड हम अपनी तरफ से शामिल करेंगे. इज दैट क्लियर? सो अब यहां तक ऑफर्ड बाय मी सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग समझ आना शुरू हुआ. लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज की कमी है. प्रेयर ऑफर्ड बाय मी, दैट इज अ सिंपल फ्रेजल टाइप सेंटेंस. It means that there is something required. So we put a helping verb. Present helping verb, because we are doing present indefinite. So a present helping verb is required, and we have written. So now the sentence is prayer is offered by me. Okay, now सेंटेंस को दोबारा देखते हैं. व्यू अगेन इसको करते हैं पैसिव वॉइस को. सो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस. सो दिस इज सब्जेक्ट, this is helping verb, this is verb third form by, and this is object, new object. Okay, हमें ये पता चला the simple active voice sentence, when it is changed into passive voice, we have to put some other things as present helping verb in present indefinite, and the word by, that is a preposition, is used before this new object. तो हमने ये शामिल किया है इसमें, इन दोनों को चीजों को मिला के. so the sentence is cleared. Prayer is offered by me. Again review it. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन गया उसकी. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने नीचे लिख ली. एक हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से प्रेजेंट का यहाँ पे करना है. अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम आर करते, या अगर आई आ जाता तो एम कर देते, बट प्रेयर के साथ इज लगता है. एक अपनी तरफ से प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे to change a active voice sentence into passive voice sentence. So this is a cross and a straight line. Again I draw it. Object, subject, straight line. Two other things added from our side. Is that okay? Let's take another sentence. Children break the toys. Again repeat the same steps. Toys come here. The toys. टॉयज प्लूरल है, आर इसके बाद लगेगा. यहां पे हमने इज लगाया था, यहां पे आर, क्योंकि आर प्लूरल है. इसके बाद ब्रेक, दैट इज द वर्ब, थर्ड फॉर्म इसकी लगेगी ब्रोकन. और इसके बाद बाय,
the children. Let's take another sentence. He sells fruit. Simple sentence है. Object is fruit, comes at the subject place. Fruit सिंगुलर है, तो is, am या are में से हम is यहां पे रिप्लेस करेंगे. फ्रूट is sells, थर्ड फॉर्म यहां पे आएगी, that is sold by he. he की ऑब्जेक्टिव फॉर्म him. fruit is sold by him, आखिर में full stop. Is that clear? Now I think you probably are able to change active voice sentences into passive voice sentences in present indefinite tense. आज हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका पढ़ा है. सो स्टेप आर सिंपल. चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई इज एम आर में से यहां पे आपने एक हेल्पिंग वर्ब लगाया और बाय लगा दिया. सिंपल इज द प्रोसीजर. प्रेयर इज ऑफर्ड बाय मी. अब मैं यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस हैं which we have done yesterday, मैं उनकी सबकी आपको पैसिव वॉइस बना देता हूं. I offer prayer daily. Prayer is offered by me daily. My friend does not tell a lie. A lie is not told by my friend. Teacher does not punish. Obviously इसमें does not punish जो है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा आपको. सो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. अब सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेते हैं. चिल्ड्रन ब्रेक द टॉयज. द टॉयज आर ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन. चाइल्ड ब्रेक्स द टॉय. द टॉय इज ब्रोकन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब. द टॉयज आर, in this sentence the toy is broken by the child. The next sentence, the toy is broken by the child. He sells fruit. We have done it. Fruit is sold by him. Next है the earth revolves around the sun. Around जो है that is a preposition, और जिस भी ऑब्जेक्ट से पहले preposition आ जाए हम उसको सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिख सकते, यानी सब्जेक्ट नहीं वो बन सकता. सो इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता. एक और बात हमें पता चली कि एवरी सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस. ओनली दो सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस व्हिच हैव अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट से पहले किसी किस्म का प्रेपोजिशन आ जाए हम उसको चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट में. इट मीन्स कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता. नेक्स्ट इज, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कोई एडवर्ब है, जिस तरह ये नाउन है, इस तरह नहीं है. इफ द ऑब्जेक्ट इज एनी ऑफ द एडवर्ब्स फॉर्म इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट प्लेस. तो इसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते. सो इन दिस वे हमें बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि हम तमाम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. कंडीशंस आर अप्लाइड. दो कंडीशन बताई हैं. अगर ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो हम उसको पैसिव वॉइस नहीं बना सकते उस सेंटेंस को. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नाउन नहीं है बल्कि कोई एडवर्ब है, जैसे इन द मॉर्निंग एक एडवर्ब फ्रेज बन जाती है. इसी तरह कोई टाइम बताए तो उस वक्त भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में. तो सिंपल सेंटेंसेस विद नाउन ऑब्जेक्ट
कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ उन सेंटेंसेस में हम चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो या उससे पहले कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ये जो मैंने लिखे हुए सेंटेंसेस 1, 2 एंड 3, इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। इज दैट ओके? नाउ अब मुझे उम्मीद है कि बाकी भी सेंटेंसेस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिए जाएं तो आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इसकी पैसिव वॉइस में। बाकी अब आपने जो बुक आपको है, आपके पास है, उसमें कुछ सेंटेंसेस बने हुए हैं, वो सिंपल एक्टिव वॉइस है, आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके देखना है। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट हम लेक्चर में किसी और चीज़ के साथ जो है अपने अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, वो हम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक हम इस लेक्चर को रखते हैं।